Which is underway in the Red Fort blast that shook the national capital on the evening of the 10th of November. Fresh CCTV visuals from seconds right after the blast have emerged, showing the panic that struck the locals over there after the explosion, leading to the entire chaos. Take a look at that. People scrambling to safety. But what's important here is that in a key breakthrough, links between the Red Fort explosion and the entire crackdown that took place, the major counter-terrorism success that took place yesterday, they have now been firmly established with the Faridabad module that was unearthed and the explosion that happened last evening. Massive search operations continue across Al Falah University, Fatehpur Taga and the Dhauj village, where the crackdown has expanded. All three locations fall within the Faridabad region. Pulwama, Saharanpur, then Faridabad. Here's News 9 breaking down the complete terror trail for you. लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। दरअसल सोमवार को धौज इलाके से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए थे और उसके बाद जो डॉक्टर मुजम्मिल थे उसको गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा एक महिला शाहीन शाहिदा को भी गिरफ्तार किया गया था और एक डॉक्टर फरार बताया जा रहा था। ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। पहले ये कश्मीर में पढ़ाता था, वहाँ से उसने पढ़ाई की थी और उसके बाद वो दिल्ली आ गया था। दिल्ली आने के बाद वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ा रहा था। बताया जा रहा है कि जो गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना है उसको जैश आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जमात उल मोमिनात महिला विंग है जैश ए मोहम्मद की, जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीना को सौंपी गई थी और ये वही डॉक्टर शाहीना है जिसके कार से पुलिस को हथियार मिले थे और इस कार का इस्तेमाल भी मुजम्मिल कर रहा था। दरअसल जो डॉक्टर उमर है वो सीधे तौर पर अदील से जुड़ा हुआ था। अदील को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पर ही ये सारी गिरफ्तारियां और विस्फोटक बरामद हुए। Well, now the police recovered about 2,500 kilograms of explosives from Fatehpur Taga and 360 kilograms of ammonium nitrate from Dhauj. This happened on Monday. And then late in the evening, the explosion took place. Investigators confirmed that Dr. Umar, the suspected mastermind of the Red Fort blast, taught at Al Falah University. Police teams are currently inside the university. Another arrested accused, Dr. Shaheena Shahid, that my colleague was just talking about, was also a faculty member there. And sources confirm that Dr. Shaheena, arrested from Faridabad, was tasked with setting up the women's wing and recruitment arm of the Jaish terror module in India. Mastermind, Dr. Umair's sister-in-law, she spoke to News 9. We've got that exclusive conversation and told us that he had called his mother last Friday, asking her not to disturb him with repeated calls because he would be spending a few days busy in the library. And she adds that the police took Umair's mother into custody early this morning as part of the ongoing investigation. मैं उमर का तो आपको लगता है कि उनकी कुछ मेंटालिटी उस तरीके की थी? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नहीं थी। लास्ट में कब बात हुई थी? जुम्मे के दिन फ्राइडे के दिन 3 ही दिन हो गए। तो क्या बताया था, खास क्या बात हुई थी? खास कुछ बात नहीं हुई थी, बस हाल चाल पूछा। बस बोला, हमने कहा हम घबरा गए हैं, आप घर क्यों नहीं आए, स्विच ऑफ क्यों रखा? बोला कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाता हूँ। उसने लेकिन पहले से ही बोल के रखा था एग्ज़ाम है। तो ये बोल के रखा था कि एग्ज़ाम है, तंग ना करें। हाँ, तंग ना करें। हाँ, कॉल करके तंग ना करें, माँ को ज़्यादा परेशानी होती है ना। उसने बोला, माँ को ही बोला, मामा को बोला कि ज़्यादा फ़ोन मत करना, मुझे ज़्यादा परेशान मत करना। तो जुमा के दिन आपकी बात लास्ट में हुई थी, जुमे के परिवार दिन की बात।
हमारी बात हुई जुम्मे के दिन। मैंने ही बोला कि घर आ जाओ, उसने कहा 3 दिन के बाद आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, कल आ जाना। उसने कहा कोई बात नहीं। बस फिर फोन कल कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ पे? 10:30 इसी शाम के, को? हाँ रात को 10 साढ़े 10। और फिर वो उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे फिर से आ गई, मेरे शौहर को ले गई। और फिर उसके बाद सुबह 3:45 शायद 4:45 उसके आसपास सर्च ऑपरेशन किया और चले गए। तो यहाँ से कुछ रिकवरी की पुलिस ने? नहीं, थोड़ी बहुत मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिया। डॉक्टर उमर की कोई चीज़ थी यहाँ पे जो? कुछ नहीं था, वो यहाँ कहाँ आता था। अच्छा, उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं, गरीबी के अलावा क्या था? नहीं देख रहे हो क्या है? इतना ही है जितना खड़ा है, बस यही है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो क्या ले जाते। Now, a worker at the Red Fort parking lot told the police that the Hyundai i20, the car that blasted, entered the parking area at 3 p.m., remained there for more than 3 hours and exited around 6 p.m. shortly before the explosion. क्या है, पुलिस तो सर 24 घंटा पुलिस यहाँ रहने करता है। पुलिस का सब गाड़ी लगा हुआ है। नहीं, उस गाड़ी की तलाश में आई थी, कुछ सीसीटीवी देखने आई थी पुलिस? इतना नहीं। लगभग कितनी देर वो गाड़ी यहाँ खड़ी रही थी? मोटा मोटी 3 बजे से 6 बजे तक है, 3 घंटा मोटा मोटी इसी पार्किंग में खड़ी रही थी? हाँ, गाड़ी की पर्ची कटी थी? एकदम कटी है। पर्चियाँ कौन काटता है, क्या नाम है उनका जो पर्चियाँ काटते हैं? कानून रमन। तो पुलिस वाले यहाँ पे आए थे गाड़ी का? हाँ, क्या बता रहे थे पुलिस वाले? नहीं, इतना जानकारी नहीं है। कुछ बात करी आपसे या पूछा? नहीं, हमसे कोई। Biden security has been tightened in Dodge, where a total of 2,900 kilograms of explosives were seized only yesterday. Police are checking shops, they're questioning locals, verifying Aadhaar IDs whatsoever. The suspected terror module is believed to have developed key hideouts in the same area. ब्लास्ट के बाद हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके में भी पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है। ये वही धौज गांव है जहां से सोमवार को 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। आप देखेंगे कि धौज गांव में इस वक्त सड़कों पर पुलिसकर्मी मौजूद है और दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है, लोगों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का जो तार है वो हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धौज गांव में ही 2900 किलो विस्फोटक मिले थे और ये भी शक किया जा रहा है कि जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है अमोनियम नाइट्रेट, वही यहाँ धौज गांव में मिला था। जिसके बाद आप देखेंगे कि फरीदाबाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो एक एक दुकानों की यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं। दरअसल जो डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है बड़ी मात्रा में यहाँ से विस्फोटक और हथियार, इसके अलावा टाइमर 20 मिले थे और डॉक्टर उमर जो कि फरार इनका चौथा साथी था वो था। लेकिन अब ये साफ हो रहा है धीरे धीरे कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो कि कार चला रहा था i20 जिसको ब्लास्ट किया गया। तस्वीर से भी साफ हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद के इस धौज गांव से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उमर जो है वो मुजम्मिल के साथ मिला हुआ था। ये लोग एनक्रिप्टेड चैट से बातचीत करते थे और कहीं ना कहीं ये लोग इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका था और उसके बाद ये लोग आपस में जुड़े हुए थे और इस तरीके से बड़ी मात्रा में इन्होंने 2900 किलो एक विस्फोटक जो है वो बरामद किया था। जिसके बाद आप देखेंगे कि धौज में भी लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो एक एक जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, एक एक दुकानों को चेक कर रहे हैं और इसी तरीके से कल सबसे पहले धौज के जगह से 360 किलो जो विस्फोटक है वो मिला और उसके बाद करीब 2563 किलो जो विस्फोटक था वो लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर धौज से एक गांव फतेहपुर तगा से मिला था। जिसके बाद आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो धौज में लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, एक एक शख्स के आधार कार्ड चेक किया जा रहा है क्योंकि यहीं पर वो अल फला यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर उमर पढ़ाता था और यहीं से वो आगे की तरफ गया था। पहले वो कश्मीर में रहता था और उसके बाद वो दिल्ली आ गया था और दिल्ली आने के बाद वो धौज की अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। फिलहाल यही माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो i20 कार चला रहा था और जिसने विस्फोट किया है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हर तरफ पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर है।